Begin with you, Sanjay Jha. Sanjay Jha, Udit Raj says that, law is all about evidence. It is based on facts and evidence. Does the CGI not know that? Does he not know that the law book is the most important thing, as is being suggested by Mr. Imran Pratapgarhi? And why is the integrity of the CGI is being questioned all of a sudden? Is it because of the Ganesh Puja? Is it because in his native village he said that he often seeks divine guidance? Is it all because of that? Swati, good evening. I came on your program. Your guest relations coordinator assured me that I'll not be interrupted during the program. So I do hope we'll not have an acrimonious conversation. Let me keep my point very short. Everyone has a right to agree or disagree with the verdict of the Supreme Court. I mean, that is a fundamental right. The opposition has agreed with some opinions of the Supreme Court, has disagreed with some, and that's in the spirit of democracy. It's not a contempt of court. I would like to make my personal position very clear, though. I have personally felt that Mr. Chandrachud has made certain judgments that will be appreciated and echoed for a long time. Some of them personally I have not agreed with. Having said that, I do believe that when he said, and I just heard his statement today, where he said that he looked upon God before he took the big judgment on the Ayodhya issue, I can understand why, that very epochal, historic moment is a tough one for any justice to go through, because there is a lot of sentiment involved, not just of the majority, but the minority community. And when you're commenting on religious faith, it's an extremely hypersensitive matter. Now, the bottom line, and I will make this point, Swati, I won't take very long, I promise you, that since 2014, when Mr. Modi became Prime Minister and the BJP came into power, India has been a very polarized polity. It has been a fractured country divided on the lines of religious issues. And that is the reason why Mr. Chandrachud's statement, which in my opinion is an innocuous statement, which he has got every right to make. I think, for any, and it can belong to any faith, any God-fearing person who says, I looked upon God before I took the call, it is not fair to assume that therefore his verdict in the Ram Ayodhya case or in any other case was politically biased. So I would say that we are making much hullabaloo about nothing, making a mountain of a molehill. Mr. Chandrachud has been a dignified person. I believe a lot of people are very unhappy with him, and I've also been critical, by the way, of many of the things that he's commented on. I understand when you said that people can agree or disagree, but is it fair to call him deceptive? Is it fair to say that he's a hypocrite? That's exactly what I was making a point, Swati. I believe Mr. Chandrachud made a statement saying that he looked at some kind of a divine intervention before taking a call on any of these verdicts. I think he was speaking as an individual, and I think religion is a very personal faith. So I don't approve of any criticism of Mr. Chandrachud's expression of his personal faith and belief in God. And anyone who assumes that because he said that, and because he happens to be a Hindu, which so am I, and because he said that his verdict was colored by it, I think that's extremely unfair. And it's not just about him being a Hindu. It's not just about him being a Hindu. We have Mr. Kishore Tiwari on the broadcast as well. Kishore Tiwari ji, Anand Dubey के हिसाब से महाराष्ट्र में जो हो रहा था वो CGI की आंखों के सामने हो रहा था, और आनंद दुबे कह रहे हैं कि उस वक्त भगवान से क्यों नहीं पूछा, शायद किसी और से पूछ रहे थे. इज इट फेयर टू कास्ट सच एस्पर्शन ऑन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ये कहना कि वो किसी और से ऑर्डर ले रहे थे इन केस ऑफ महाराष्ट्र? देखिए, मैं धनंजय चंद्रचूड़ की बहुत आस्था रखता हूं और उनका आदर भी करता हूं, लेकिन महाराष्ट्र के वर्डिक्ट पे उन्होंने कहा था ना कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आ गई, तो उद्धव जी ने अगर रिजाइन नहीं किया होता तो मैं रिस्टोर कर देता. अब मुझे क्या लगा कि वो पिछली तारीख पर वो डिसीजन दे देंगी, लेकिन फिर मुझे चांस है ना बोलने का कि मोदी जी वो टोपी पहन के आरती करने गए तो कान में तो नहीं बोल दिया उनकी कि जरा महाराष्ट्र देख लेना. अच्छा, तो एक तो मोदी जी का आरती को जाना भी नागवार गुजरा था मुझे. दूसरा, महाराष्ट्र का वर्डिक्ट कब आया था? गणेश पूजा कब हुई थी? अरे गणेश पूजा के 4 दिन बाद में डेट थी. अभी तो डिसीजन ही नहीं दिया, आप तो रिटायर होने को जा रहे हैं. अच्छा, नहीं तो आप कह रहे हैं कि गणेश पूजा में जाके मोदी जी ने उनको बोला, और वैसे मोदी जी नहीं बोल सकते थे उनको, ये गणेश पूजा का ही बहाना बना के मोदी जी उनके घर गए बोलने. अरे क्या मालूम यार, अभी ये मोदी जी चले गए थे तो मैंने को
लोगों ने बोला बिगर बुलाए गए थे, लेकिन ठीक है गए। किशोर तिवारी जी, इतना इररिस्पॉन्सिबली कि क्या मालूम यार, मतलब हम सीजीआई के बारे में बात कर रहे हैं सर। अरे ये किस तरह की थियोरीज है? ये किस तरह की थियोरीज हैं? अरे भाई मैं चौथी एक बात बोल रहा हूं, सीजीआई ने अपनी पद की गरिमा रखते हुए, हाँ जब वो सीजीआई है, अभी रिटायर नहीं हुए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या बोल दिया, ये समझना चाहिए। ऐसा क्या बोल दिया? देखो, अरे भाई मैं भगवान से क्या लेना डिसीजन ये पूछता हूं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको वो क्या इग्नोर करते हैं? एक मिनट, मुझे तो समझ में नहीं आया। एक मिनट, मुझे तो समझ में उन्होंने नहीं कब आया। कहा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को इग्नोर कर रहा हूं? कब कहा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को इग्नोर कर रहा हूं? अरे भाई वो चीजें वैसी बोले उन्होंने। ऐसा क्या बोल दिया किशोर तिवारी? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम आस्किंग यू। आपको कभी अपने पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में कभी ऐसी कठिनाई नहीं आई जब आपने भगवान के सामने सरेंडर किया हो या कहा हो कि रास्ता दिखाइए? इसका मतलब क्या भगवान ने आके उनके कान में कह दिया कि ऐसा ऐसा वर्डिंग देना? अरे भाई ये बात वो रिटायर होने के बाद भी बोल सकते, मैं अभी बोल रहा हूं। तो ऐसा कहीं लिखा है, ऐसा कहीं लिखा है संविधान में कि वो सीजेआई हैं, तो वो अपने रिलीजियस बिलीफ के बारे में नहीं बोल सकते, कि वो ये नहीं बोल सकते कि उनको भगवान में आस्था है, कि वो ये नहीं बोल सकते कि मैं रोज अपनी दिनचर्या के हिसाब से पूजा करता हूं? सीजीआई रहते ऐसी बात नहीं कर सकते, ऐसा कहीं लिखा है क्या? अरे स्वाति, पूजा करे, भगवान में आस्था रखे, लेकिन हमको न्याय दे देना था, इसलिए हमने बोला हमको तो न्याय दे देना था। अरे बाबा जी हमको न्याय दे देते तो अच्छा रहता। किशोर तिवारी जी, बता रहा कितना कन्वीनियंट है, मतलब बहुत कन्वीनियंट है। ये तो अभी हमने जो एग्जांपल साइट किए कि अभी कुछ दिन पहले 6A को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो आपने तारीफ की, वाहवाही की। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के जब उनके बेंच ने फैसला दिया तब आपने वाहवाही की। मतलब आप ये क्लियर कह रहे हैं कि भाई कन्वीनियंस का मामला है, हमें सूट करता है तो हम जय जयकार करेंगे और हमें नहीं सूट करता है तो फिर हम इस तरह के आरोप लगाएंगे। शहजाद पूनावाला, अरे मैं राजनीति में हूं तो मैं क्या नहीं, पर सीजीआई राजनीति में नहीं है ना किशोर तिवारी जी। आप उनको राजनीति में, उनके रिलीजन को राजनीति में क्यों घसीट रहे हैं? शहजाद पूनावाला, मैं बोल रहा हूं, मुझे लगता है शहजाद पूनावाला, अच्छा ठीक है, अब जो हमारे बाकी के पैनलिस्ट हैं, बीजेपी के वर्कर बन गए। किसके वर्कर? या वो बीजेपी के वर्कर बन गए। अच्छा, वो बीजेपी के वर्कर भी बन गए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के फैसले के टाइम पे आपने क्या कहा था? इलेक्टोरल बॉन्ड्स के टाइम पर वो किसके वर्कर थे? अरे भाई इतना दिल्ली में अधिकारों की बात पर जब फैसला हुआ तो किसके वर्कर थे? वो चुप भी तो रहे, बाद में चुप भी तो रहे। मतलब आज सारी हदों को आप पार कर दीजिए, जो भी मौका मिले आरोप लगाने का आप लगा देंगे बिना किसी सर पैर के। अब अपने बाकी पैनलिस्ट को बोलने दीजिए जरा। शहजाद पूनावाला, लेट अदर्स स्पीक। रिस्टोर कर लेते तो नहीं बोलता।